Good morning students, welcome to BRT YouTube channel. So from today onwards we are going to start the new semester classes और आपको जो subject I am going to teach is Human Resource Management PBA Code 303. तो आज के इस YouTube lecture में सबसे पहले तो हम HRM के concepts को discuss करेंगे कि what is actually the human resource actually means. इस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट इज वेरी मच रिलेटेड टू मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस. सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज मैनेजमेंट, जैसे कि आप सबने बीबीए के सब्जेक्ट्स में पढ़ा ही है, मैनेजमेंट के फंक्शंस और प्रिंसिपल्स को हम लोग पढ़ते आए हैं. तो व्हाट इज मैनेजमेंट? इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स और इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर पीपल. मैनेजमेंट एक ऐसी कला, एक ऐसी आर्ट है जिसमें बेसिकली we try to get our work done efficiently and effectively through others. And if we talk about management in business and organization, is the function that coordinates the efforts of people to accomplish the goal and objectives using the available resources efficiently and effectively. Basically management in business and organization एक ऐसा function है जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन के जरिए जितने भी लोग उससे जुड़े उनके एफर्ट्स को यूज किया जाता है टू अकम्प्लिश द गोल एंड ऑब्जेक्टिव यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. व्हाट इज एक्चुअली मैनेजमेंट इज? मैनेजमेंट इज बेसिकली द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं. सो दैट द कंपनी, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन अकम्प्लिश इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को, इस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसके साथ साथ वन बाय वन हम इस सब्जेक्ट के जो 4 पॉइंट्स हैं, जो 4 एलिमेंट्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे सो दैट आपको जो सब्जेक्ट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो आसानी से समझ में आ जाए. कमिंग टू व्हाट इज एचआर, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का डिस्कशन हमने अभी किया कि इट इज अ पार्ट ऑफ, basically it is an art. It is an art of getting work done through others so that an organization or company can achieve its objectives and goals properly, efficiently, in effective manner. अब इसके साथ हमें जानना जरूरी है what is HR. Human resources is the set of individuals who make up the workforce of an organization, business sector or economy, or other terms sometimes used to include manpower or talent, labor or simply people. Human resource की अगर हम बात करें तो human resources are basically what? They are a set of individuals who make up the workforce of an organization. Human resources is basically a set of people, set of individuals, set of talent that basically makes up the workforce of an organization, of an economy. और other terms की अगर हम बात करते हैं तो HR का मतलब simply होता है manpower, the talent which an organization acquire, or the labor, or in simple terms the people who are associated with the company, with the organization to accomplish its goals and objectives. Am I clear? Human resources basically company के organization से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो workforce होता है जो कंपनी के goals और objectives को complete करने में कंपनी की हेल्प करता है. If we move on to the definition of HR, basically HRM is defined as the art of procuring and developing and maintaining, the art of procuring, developing and maintaining the competent workforce to achieve the goals of an organization in an effective and efficient manner. अगर हम कंप्लीटली बात करें HRM की तो बेसिकली HRM क्या है? HRM एक आर्ट है in that we procure, we develop, we maintain the competent workforce to achieve the goals of an organization in an effective and efficient manner. It is an art, एक ऐसी कला है जिसमें हम talented अच्छे workforce को, manpower को procure करते हैं, develop करते हैं, maintain करते हैं ऐसी workforce को जिससे कंपनी के goals and objectives, जिससे organizations के जो goals हैं वो एक efficient manner में, effective manner में complete हो पाए. Coming to the next point, HRM is the function performed by an organization that facilitates the most effective use of people to achieve organization and individual goals as well.
जिसमें बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन tries to facilitate the people and the organization as well so that they can achieve the organization and individual goals as well. एक ऐसा फंक्शन जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव मैनर में अपने वर्कफोर्स को, अपने टैलेंट को, अपने साथ जुड़े लोगों को यूज कर अपने ऑब्जेक्टिव्स को और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को साथ साथ पूरा कर सके, उसे हम HRM कहते हैं. द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजमेंट दैट इज परफॉर्म्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन so that the company, the organization can achieve its goals and objective effectively. इसके साथ स्टूडेंट एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी along with this topic. HRM बेसिकली 3 लेटर से जुड़ के बना है. इसको आप ध्यान से समझ लीजिए और ये सब चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इट इज कंप्राइजेस ऑफ 3 वर्ड्स. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम HRM कहते हैं. ह्यूमन, जैसे कि मैंने आपको बताया, बेसिकली आर द पीपल, द वर्कफोर्स दैट आर एसोसिएटेड विद द कंपनी. जो स्टाफ, जो एम्प्लॉयज है, जो कंपनी से जुड़कर काम कर रहा है, वो ह्यूमन में काउंट होते हैं. रिसोर्सेज आर बेसिकली द स्टॉक एंड सप्लाई ऑफ द कंपनी दैट इट इज यूज्ड टू अचीव इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मैनेजमेंट, जैसा हमने सबसे पहले पढ़ा, मैनेजमेंट इज बेसिकली द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट. तो HRM में बेसिकली ये 3 वर्ड से जुड़कर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को क्रिएट किया है, जिसको हम कह सकते हैं इट इज अ फंक्शन परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फैसिलिटेट्स द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ पीपल, दैट इज द रिसोर्सेज, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल गोल्स एज वेल. आई होप कॉन्सेप्ट आप साथ साथ क्लियर कर रहे हैं. कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि हम अपने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग से क्लियर करते चलें. इफ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, HRM इज प्लानिंग. बेसिकली यहाँ पर हम HRM के डायमेंशंस को अच्छे से पढ़ रहे हैं. तो HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, integration, maintenance and separation of human resources to the end that individual, organization and social objectives are accomplished. Core elements of HRM organization is basically people and management. अगर दोबारा हम इस definition पर, इस point पर ध्यान दें, तो HRM basically एक तरह की planning है, एक तरह के ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग फंक्शंस हैं, कंट्रोलिंग फंक्शंस हैं. किस लिए, क्यों परफॉर्म किए जाते हैं? फॉर द प्रोक्योरमेंट, फॉर द डेवलपमेंट, टू कंपनसेट द रिसोर्सेज. जो लोग काम कर रहे हैं आपके साथ, आपकी कंपनी में जुड़कर अपने टैलेंट को वहां पर वो लोग यूज कर रहे हैं, तो वी नीड टू कंपनसेट दैट. इंटीग्रेट करना, मेंटेनेंस, इट इज द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूटी एज वेल, एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू द एंड दैट इंडिविजुअल, organization and social objectives are accomplished. Basically ये सब चीजें, ये सब functions हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, so that जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे साथ जुड़े हैं, वो बेसिकली एट द एंड इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल ऑब्जेक्टिव को हम अकम्प्लिश कर पाए. दैट इज द कोर प्रोसेस ऑफ HRM. आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि HRM ह्यूमन रिसोर्स का जो मैनेजमेंट यहाँ पर हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है? जिससे कि इंडिविजुअल लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर और सोशल ऑब्जेक्टिव या सोशल लेवल पर इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके. ऑब्वियसली बात है, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज के साथ जो भी वर्कफोर्स जुड़ी रहती है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जुड़ी है. कंपनी के ऑब्जेक्टिव अगर पूरे हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे होने भी उतना ही जरूरी है. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कोर एलिमेंट्स ऑफ HRM ऑर्गेनाइजेशंस. सभी को क्लियर होना चाहिए कि जो कोर एलिमेंट है HRM ऑर्गेनाइजेशंस के, वो क्या होते हैं? पीपल एंड मैनेजमेंट. अगर मैं आपको सबसे सिंपल टर्म्स में बताऊं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एट द वर्क प्लेस. व्हेनेवर वी मैनेज द पीपल एट वर्क प्लेस, इट इज बेसिकली HRM. तो जो दो कोर एलिमेंट्स हैं, दो कोर पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये पूरा मैनेजमेंट टिका है, ये HRM का प्रोसेस टिका है, वो है पीपल एंड इट्स मैनेजमेंट. अगर कहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग, वहां पर काम करने वाले लोग, वहां पर काम करने वाली वर्क फोर्स ही व्यवस्थित नहीं है,
तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो किस तरह से और किस समय पर पूरे होंगे। तो बेसिकली मैनेजिंग पीपल एट वर्क इज HRM, और वो उतना ही जरूरी है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप डिसिप्लिन मैनर में मैनेज करके चीजों को अगर हम करते हैं तो उसका जो एंड रिजल्ट है वो हमें पहले ही पता होता है कि वो कितना ज्यादा सर्टेन होगा। तो दिस इज बेसिकली द कोर एलिमेंट पीपल एंड मैनेजमेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, द HRM प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ, बेसिकली जो HRM प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, अट्रैक्टिंग, developing and retaining the human resources or employees of an organization. HRM प्रोसेस में ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको अपनी वर्कफोर्स से क्या काम कराना है, कितना काम कराना है, कितने एफिशिएंट लेवल तक काम कराना है, वो प्लानिंग पे डिपेंड करता है। Who is going to perform the duty? How is he is going to perform duty? That is planning. ऐसा नहीं है कि आप कभी भी किसी से कोई भी काम करा सकते हैं, फिर तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स तो पूरे होंगे, बट जैसा आपने सोचा है वैसे पूरे नहीं हो पाएंगे। तो वी नीड टू प्लान द थिंग्स, ऑब्वियसली अट्रैक्टिंग द बेस्ट टैलेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री। ऐसे वर्कफोर्स को आपको अट्रैक्ट करना है जो आपके सेट ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने में आपकी हेल्प करे। आफ्टर दैट डेवलपिंग, ऑब्वियसली बात है ग्रोथ डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है वर्कफोर्स का। अगर आप चाहते हैं कि साइड बाय साइड आप इंडस्ट्री के साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ग्रो करें, तो यू नीड टू डेवलप योर वर्कफोर्स ऑल्सो। एंड रिटेनिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, रिटेंशन का जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर एनवायरमेंट अच्छा है, वहां की वर्कफोर्स ऑब्वियसली वहां के लिए लॉयल रहती है और वहां की जो उनकी रिटेनिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। किसी भी नई जगह आप एकदम जाएंगे तो आप वहां उतनी जल्दी से एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, बट जहां आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, चीजों से वाकिफ है, वहां की जो प्लानिंग है, वहां की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो आपको सूट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी जो रिटेनिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज को हायर करना, whenever we hire the talent, whenever we hire the people, it is a very time-taking process, it is a very expensive process for every company, for every organization. तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जो भी वर्कफोर्स आपने गैदर करी है, अगर वो रिटेन कर रही है तो कंपनी की स्टेबिलिटी दिखती है। अगर बहुत जल्दी से लोग आ रहे हैं और बहुत जल्दी से लोग वापस जा रहे हैं, तो दिखता है कि कंपनी में जो वर्कफोर्स है वो किस तरह से प्लान की गई है, किस तरह से उनको डेवलप किया जा रहा है कि रिटेंशन पावर पूरी हो जाए। तो बेसिकली अगर हम इसको वापस से रिकॉल करें, HRM प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग एंड ऑब्वियसली रिटेनिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज और द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो हम पढ़ रहे हैं, इसका मैनेजमेंट किस तरह होता है और क्यों इसका मैनेजमेंट जरूरी है। दिस इज ऑल थिंग्स इन्वॉल्व इन द कॉन्सेप्ट ऑफ HRM। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स, अगर हम इसके मीनिंग को अगर डिस्कस करते हैं, मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। वर्ड बाय वर्ड आपको इसको समझना है। व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ HRM? द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ पीपल एट वर्क। जैसा कि आपको हमने डिस्कस किया है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द पीपल एट वर्क। HRM is the process which binds the people with the organization and help both people and organization to achieve each other's goal. जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन और जो वर्कफोर्स है वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी कला है जिसके अंदर हम लोगों को मैनेज करते हैं वर्क प्लेस पर, कौन कितना काम करेगा, कैसे काम करेगा, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर whom। तो ये सब जो मैनेजमेंट है लोगों का काम पर, उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर वी बाइंड्स द पीपल विद द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के साथ लोगों को जोड़ दिया जाता है। क्यों लोग जुड़ते हैं? अपने बेनिफिट के लिए, कि उनको अच्छी ग्रोथ मिले, अच्छी प्रोफाइल में वो लोग काम करें, अच्छी सैलरी वो लोग काम करें। ऑब्वियसली एवरीबॉडी जॉइन्स फॉर अ कॉज। और सेम थिंग हैपेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ईच अदर्स गोल। कंपनी में अच्छे टैलेंट को क्यों अक्वायर किया जा रहा है, क्यों उनको डेवलप किया जा रहा है कि समय समय पर जो कंपनी के सेट टारगेट्स हैं वो भी अच्छे से वो लोग अचीव कर लें। तो बेसिकली इट इज द प्रोसेस व्हेन both people and organizations both tries to achieve each other's goal.
Various policies, processes and practices are designed to help both employees and organization to achieve their goal. इसके साथ साथ स्टूडेंट्स HRM, क्योंकि आज तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को अभी डिस्कस कर रहे हैं, HRM प्रोसेस के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, HRM प्रोसेसेस को हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिसेस को हम डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली इसीलिए ही डिजाइन हुए हैं जिससे कि एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर पाए। जब दो लोग म्यूचुअल बेनिफिट से एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, कंपनी भी चाहती है कि अच्छा वर्कफोर्स हमारे पास हो और जो लोग कंपनी के साथ जुड़े हैं वो भी चाहते हैं कि कंपनी की गोल्स भी अचीव हो, साथ साथ हमारा भी डेवलपमेंट हो। तो इस तरह की पॉलिसीज और प्रोसेस को, प्रैक्टिसेस को वहां पर फॉलो किया जाता है जिससे टाइम टू टाइम कंपनी के प्रोसेस में एनहांसमेंट आए, लोगों की ग्रोथ भी साथ साथ चलती रहे। तो दिस इज ऑल अबाउट HRMB. Coming to the next point, HRM is a branch of management. इससे आप जरूर ध्यान दें, it is a branch of management. ये मैनेजमेंट की ही एक ब्रांच है that deals with the people at work. Obviously, it deals with the people at work. It is concerned with human dimensions of management of the organization. Basically, ये concern है लोगों से. It is concerned with people. It is concerned with human dimension of management of the organization. ये चीज आपको हमेशा की करनी चाहिए। We all are individuals. हम सबका अपना एक माइंडसेट होता है, अपना एक काम करने का तरीका होता है, अपना एक एटीट्यूड होता है, अपने मूड स्विंग्स होते हैं, अपने बेसिकली काम करने के अलावा जो भी हमारे माइंडसेट्स हैं या फिर जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं वो भी एक दूसरे से डिफर करती है। तो यहाँ पर ह्यूमन डायमेंशंस का मतलब है कि एवरी ह्यूमन इज नॉट सेम। सबके अंदर कुछ बहुत अच्छा होता है, कुछ कमी भी होती है, कुछ लोगों के अंदर वही चीज बहुत अच्छी होती है। तो बेसिकली ह्यूमन डायमेंशन को मैनेज करने वाली बात है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कफोर्स काम कर रही है, अलग अलग एनवायरमेंट से वो लोग जुड़े हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से वो लोग आ रहे हैं कंपनी में काम करने के लिए, बट वहां पर उन सबका जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम होता है। इसलिए बेसिकली इट इज कंसर्न्ड विद द ह्यूमन डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट एट द ऑर्गेनाइजेशन। As organization consists of people, therefore acquiring them, developing their skills, providing them motivation in order to attain higher goal and ensuring that the level of commitment. As an organization, HRM का जो ये प्रोसेस है उसमें ऑर्गेनाइजेशन की क्या ड्यूटी बनती है कि बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ पीपल, लोगों से ही वो जुड़ा है, लोगों के ऊपर ही हम लोग यहाँ बात करें, जो एम्प्लॉइज हैं, जो स्टाफ है वहां पर। Therefore, acquiring them, उनको acquire करना मतलब you need to search best from the best, उनको acquire करना, developing their skills, अगर वो 90% है तो उनको 100% करना है, developing their skills, कि भाई कोई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिसनर है, बहुत अच्छा स्पीकर है कोई, तो उसकी स्किल्स को हम और बढ़ा सकते हैं। तो ये भी काम एक ऑर्गेनाइजेशन का ही है। प्रोवाइडिंग देम मोटिवेशन इन ऑर्डर टू अटेन हायर गोल, समय समय पर उन्हें प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, जिससे कि कंपनी अपने गोल्स को, हायर गोल्स को अचीव कर सके। कंपनी का कोई सेट टारगेट नहीं होता, वंस यू अचीव द बेंचमार्क, आपको आगे ही बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको लोगों को मोटिवेट करना होगा, अच्छी वर्कफोर्स को डेवलप करना होगा, ensuring that the level of commitment is maintained are the important activity. ये इंश्योर करना है कि जो लोगों का लेवल ऑफ कमिटमेंट है, जो लॉयल्टी है, जो रिटेंशन कैपेबिलिटी है, वो भी मेंटेन रहे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल, इंडिविजुअल का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। आई होप यहाँ तक के कॉन्सेप्ट्स में आपको HRM की जो ये डेफिनेशन है, जो मीनिंग है, वो क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM। ऑब्जेक्टिव्स को स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं, आज हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को, उसकी मीनिंग को डिस्कस किया है, जो बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैनेजिंग पीपल एट वर्क, ह्यूमन मीन्स द एम्प्लॉय, द स्टाफ, रिसोर्सेज मीन्स द सप्लाई, द स्टॉक ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट का मतलब होता है व्हेनेवर वी बेसिकली ट्राइज टू गेट वर्क डन थ्रू अदर्स, उसे मैनेजमेंट कहते हैं कि सही समय पर कैसे सही लोगों से सही काम कराना है, उस प्रोसेस को, उस कला को मैनेजमेंट कहते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमने यही कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्वियसली कंप्राइजेस ऑफ पीपल, तो
तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, वो हमें डिस्कस करने हैं। द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स गोल्स। ऑब्वियसली बात है, व्हाई डू वी मैनेज द पीपल एट वर्क? भाई बार बार हम बोल रहे हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल एट वर्क। व्हाई वी नीड टू मैनेज द पीपल? वी नीड टू मैनेज द पीपल टू रीच इट्स गोल। कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, अगर आपको उन्हें रीच करना है तो यू नीड टू बेसिकली मैनेज द पीपल ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रीचेस इट्स गोल। कमिंग टू द नेक्स्ट इज to employ the skills and abilities of the workforce efficiently। जो भी वर्कफोर्स कंपनी से जुड़ी है, उन वर्कफोर्स की स्किल्स को, एबिलिटीज को, वर्कफोर्स की स्किल्स को और एबिलिटीज को हमें बेसिकली एफिशिएंटली डील करना है कि जो भी कंपनी में टैलेंट है, वर्कफोर्स है, लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ, जो भी एम्प्लॉयज हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी जो स्किल्स है, उनकी जो कैपेबिलिटीज है, वो एफिशिएंट मैनर में यूज हो। ऐसा ना हो कि कोई बहुत अच्छा कैपेबिलिटी लेकर बैठा है बट उसके हिडन टैलेंट को कंपनी नहीं देख पा रही है, तो उसकी जो एबिलिटी है, जो स्किल्स है, वो टू द मार्क यूज नहीं हो पाएंगी। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है एचआरएम का कि जो भी एम्प्लॉयज है उनकी स्किल्स को आपको एफिशिएंटली यूज करना है, आपको द मार्क उनको लेकर जाना है, उनकी कैपेबिलिटीज को और बढ़ाना है। Coming to the third objective is to provide the organization with the well-trained and well-motivated employees। बार-बार हमने ये चीज पढ़ी है कि HRM is the process of planning, of attracting। तो why do we plan? What do we plan? हम क्या प्लान कर रहे हैं? हम ये प्लान कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में well-trained और well-motivated employees हो। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो टैलेंट आपने प्रोक्योर किया है, जो टैलेंट आप एक्वायर करके लाए हैं, वो ट्रेंड नहीं है या वेल मोटिवेटेड नहीं है, तो कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पाएगी। किसी भी ऑब्जेक्टिव को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए विल पावर चाहिए होती है, मोटिवेशन चाहिए होती है, जो कंपनी अपने अकेले होने पर नहीं कर सकती अगर एम्प्लॉयज वेल ट्रेंड नहीं है, वेल मोटिवेटेड नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टू इंक्रीज टू द फुलेस्ट द एम्प्लॉयज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एक्चुअलाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, टू इंक्रीज द फुलेस्ट जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एक्चुअलाइजेशन। कंपनी के बेसिकली एम्प्लॉयज को ये फुलेस्ट जॉब सेटिस्फैक्शन आपको देना है, इस तरह से चीजों को प्लान करना है, मैनेज करना है, डेवलप करना है कि वो हाईएस्ट लेवल पर जॉब सेटिस्फैक्शन को अचीव करना है। टू डेवलप एंड मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ वर्क, इट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट टू डेवलप एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। कोई भी वर्कफोर्स, कोई भी एम्प्लॉय ये नहीं चाहता कि ऑल द टाइम ही इज एंगेज्ड इन वर्क, तो मोटिवेशन लेवल एक टाइम पर आकर हो जाएंगे, तो विल नॉट हैव टाइम फॉर योर ओन। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ वर्क। टाइम सेट हो, चीजें प्लान हो, चीजें डेवलप मैनर में आगे चले, तो अपने आप जो वर्कफोर्स होता है वो मोटिवेटेड फील होकर काम करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज to communicate HR policy to all the employees। It is also one of the objective कि कंपनी की जो भी HR policies हैं, जो भी प्लान किया है कंपनी ने पॉलिसी रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज, वो टाइमली सबको कम्युनिकेट हो। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। आफ्टर दैट, टू बी एथिकली एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। दिस सब्जेक्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू ह्यूमंस, रिलेटेड टू पीपल, तो इट इज द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। कंपनी की ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है, एचआरएम का ये उद्देश्य है कि बेसिकली वी शुड एथिकली एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। विद दिस, ये जो आज टॉपिक हमने डिस्कस किया है, इसको हम एक बार एंड अप कर लेते हैं। और मैं आपको वापस से रिकॉल करा दूं, इस लेक्चर में हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, बीबीए सब्जेक्ट कोड 303 फॉर द 3rd सेमेस्टर। कॉन्सेप्ट को पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। कहीं भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू विद द नेचर, विद द स्कोप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर